ٹھیک ہے. اچھا جی، ہمارے پاس what is a perceptron. بیسیکلی ہمیں جب مشین لرننگ جو ہے وہ ایک پرانی فیلڈ ہے اینڈ people will using machine learning algorithms in different scenarios. تو کیا ہو رہا تھا جی، بڑا اچھا کام چل رہا تھا، لیکن جب بہت زیادہ کمپلیکس پرابلمس کی بات ہونے لگی، بہت زیادہ کمپلیکس پرابلم کی، جیسے کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ، ٹیکسٹ پروسیسنگ، وائس پروسیسنگ، امیجز کی پروسیسنگ، تو وہاں مشین لرننگ الگوریدمز جو ہے وہ اتنا اچھا کام نہیں پرفارم کر رہے تھے. ٹھیک ہے، ایکوریسی لیول جو ہے وہ بہت اچھا نہیں ہو رہا تھا. تو کچھ سائنٹسٹ جو ہیں 60s میں 65 میں انہوں نے ایک ایسا ماڈل بنانے کی سوچی کہ جو اٹ سیلف لرننگ کر سکے. کیا کر سکے؟ خود سے لرننگ جو ہے وہ کر سکے. ابھی تو ہم مشین لرننگ کو ڈیٹا دیتے ہیں اور ایک بار ہم نے ڈیٹا دیا، اس نے اس میں سے جو بھی پیرامیٹرز کو کیا کیا، نکالا اور رزلٹ ٹرائی کر دیا. نہیں 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 تھے بتا رہا ہوں میں. مشین لرننگ انہوں نے بات کی، مشین لرننگ کا جو ایرا آیا وہ 2000 میں آیا، 2010 میں آیا. نہیں بھائی نہیں، مشین لرننگ جو ایگزسٹ کرتی تھی وہ 19 یا 19 والی ہماری جو 20th سینچری تھی اس کے اندر بھی مشین لرننگ چل رہی تھی. اچھا، تو تم نے کیا جواب دیا اس بات کا؟ یار تم مشین لرننگ کے اسٹوڈنٹ ہو پچھلے 4-5 مہینے سے، تمہیں کچھ تو جواب دینا چاہیے تھا. چلو 1 مہینہ ہو گیا، تمہیں کچھ تو جواب دینا چاہیے تھا. کچھ چھیڑ نہیں سکتے، یہ وہی بجلی کا کھمبا ہو گیا. اچھا، تو مشین لرننگ از ناٹ 2000 فیلڈ، یہ پرانی فیلڈ ہے جس میں کام چل رہا ہے. ہاں مزید، ہاں مزید بڑھے گی، کم نہیں ہوگی. اچھا، اب بات یہ ہے کہ شاید ہم نے ڈسکس کیا ہو کہ پہلی دفعہ جو اے آئی کی ٹرمنالوجی استعمال کی گئی تھی کب کی گئی تھی؟ 1956 میں. ٹھیک ہے، 1956 میں پہلی بار اے آئی کی ٹرمنالوجی استعمال کی گئی. تو جتنے ایڈوانس الگوریدمز آج ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں وہ کسی نہ کسی 90s کی دہائی میں اس کے بعد سے جو ہے وہ موجود ہیں. ایون کہ نیچرل لینگویج پروسیسنگ کے بھی، کمپیوٹر ویژن کے بھی. ٹھیک ہے، یہ الگوریدمز اس وقت کیا کر لیے گئے تھے؟ بنا لیے گئے تھے، بٹ اپلیکیبل نہیں ہو رہے تھے بیکاز آف پروسیسنگ پاور، ڈیٹا. ٹھیک ہے، اور جتنے ریسورسز ریکوائرڈ تھے وہ اس وقت جو ہے موجود نہیں. تو پیپر پہ تو کام جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا. تو پہلی بار جو بنایا گیا پرسیپٹرون، کیا سوچا گیا تھا اس کے بارے میں کہ بھائی ایک ایسا ماڈل بنائیں جو کیا کر سکے، لرن کر سکے، اٹ سیلف لرن کر سکے. ابھی ہم مشین لرننگ میں جو ڈیٹا دیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ یار وہ ایک بار ڈیٹا ٹریورس کرتا ہے اور آنسر جو ہے وہ ہمارے جو لرننگ ہے وہ کر لیتا ہے. یہ لرننگ پروسیس ریپیٹڈ نہیں ہوتا، ریپیٹڈ نہیں ہوتا. یا اگر ہم اس کی بات کریں کہ پہلی بار جو ہے وہ بایولوجیکل نیورون کو کیا کیا گیا، پہلی بار بایولوجیکل نیورون کو میتھمیٹیکل ماڈل میں کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی. کس کو کنورٹ کرنے کی کوشش کی گئی؟
एक बायोलॉजिकल न्यूरॉन को। ये एक ह्यूमन दिमाग का न्यूरॉन है जिसके पास मुख्तलिफ सेंसेस से डेटा आता है, प्रोसेस होता है एक सेंटर पॉइंट के ऊपर, एंड देन आगे जो है वो ट्रेवल करते जाता है। इस बायोलॉजिकल न्यूरॉन को जो है वो क्या किया गया, एक मैथमेटिकल मॉडल में मिमिक करने की कोशिश की। क्या किया भाई, एक मैथमेटिकल मॉडल में जो है वो कन्वर्ट करने की कोशिश की, एंड दैट फर्स्ट मैथमेटिकल मॉडल वाज परसेप्ट्रॉन। क्या था भाई, परसेप्ट्रॉन जो है वो पहला मैथमेटिकल मॉडल था। और इस पहले मैथमेटिकल मॉडल को लेके बात जो है वो काफी हद तक जो है वो आगे बढ़ना शुरू हो गए, रिजल्ट जो है वो अच्छे आना शुरू हो गए। ये परसेप्ट्रॉन मॉडल कैसे काम करता था, बेसिकली परसेप्ट्रॉन के अंदर जो है वो एक, अभी मैं इसकी जिक्र करूंगा, अभी मैं इसको कह रहा हूं, एक नोड होती है। क्या होती है, एक नोड होती है। और बाद में क्या हुआ, जब ये परसेप्ट्रॉन फेल हुआ एट सम पॉइंट, वो अभी हम डिस्कस करेंगे किस पॉइंट पे ये परसेप्ट्रॉन क्या हो गया, फेल हो गया। और फेल होने के बाद जो क्या किया गया, अब परसेप्ट्रॉन का नया वर्जन इंट्रोड्यूस किया गया, दैट वाज, इसको हम कहते हैं ना, हाँ न्यूरल नेटवर्क ही कहते हैं, बट इसको शुरू में क्या किया गया, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन। यानी इसके अंदर अब एक परसेप्ट्रॉन नहीं था, बल्कि क्या होने लगा, मल्टीपल न्यूरॉन्स जो है वो इस्तेमाल होने लगे। एंड दिस मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन ही एक्चुअली क्या है हमारे पास, न्यूरल नेटवर्क जो है वो बनाते हैं। ठीक है, खैर इस पे हम बाद में आएंगे, पहले हम परसेप्ट्रॉन को पढ़ रहे हैं कि अब हमारे पास बेसिकली क्या होता था, हमारे पास कुछ डेटा फीचर्स होते हैं। जैसे हमने कहा यार किसी बंदे की एज है हमारे पास, उसका हमारे पास जो है वो जेंडर है, और क्या भी हमारे पास उसका वेट है, उसकी हाइट है, ठीक है, और क्या भी, चलो ठीक है, बीएमआई है। और इसकी बेसिस पे हम क्या देख रहे हैं कि भाई ये बंदा जो है वो क्या है, डायबिटीज है या नहीं, डायबिटीज है या नहीं। ये सिंपल सा हमारे पास यूज केस है। तो बेसिकली परसेप्ट्रॉन में ये कैसे प्रोसेस हुआ कि जिस तरह ह्यूमन न्यूरॉन के अंदर मुख्तलिफ सेंसेस से क्या आ रहा होता है, डेटा आ रहा होता है। अब यहाँ पर परसेप्ट्रॉन में ये इनपुट न्यूरॉन्स जो है वो बनाए गए। क्या किए गए, इनपुट न्यूरॉन्स बनाए गए। कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5, तो 5 न्यूरॉन्स, और हर न्यूरॉन के ऊपर जो है वो क्या मौजूद है, ये डेटा जो है मौजूद है। ठीक है, लाइक ये किसका है भाई, एज, एंड देन जेंडर, देन वेट, देन हाइट, एंड उसके बाद जो है बीएमआई। ठीक है, ये हमारे पास इनपुट हुआ। और यहाँ पर जो है एक परसेप्ट्रॉन इस्तेमाल किया गया, क्योंकि हम सिंगल परसेप्ट्रॉन की बात कर रहे हैं ना, तो देयर इज अ सिंगल न्यूरॉन, ये परसेप्ट्रॉन इस्तेमाल किया गया। ये सारे इनपुट्स जो हैं वो इसके पास क्या करते हैं, पहुंच जाते हैं। सारे इनपुट जो हैं इस परसेप्ट्रॉन में दाखिल हो जाते हैं। ठीक है, एक जगह कन्वर्ट, अगर कुछ बायोलॉजिकल न्यूरॉन जो हम देख रहे थे वहां भी आपको कुछ ऐसी ही बात बता रहे थे कि सारी जगह से जो सेंसेस है वो इस एक न्यूक्लियस में क्या होता है हमारे पास जमा हो जाते हैं, और इंफॉर्मेशन जो है वो क्या हो जाती है, प्रोसेस हो जाती है। अच्छा, अब व्हाट यू से, मैं इस डायग्राम को ले लूं, अगर नजर आ रही है अब, हाँ, कि भाई ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स हैं। ठीक है, ये सारे इनपुट्स हैं,
और ये सारे के सारे जमा हो रहे हैं कहाँ पे जाकर, एक परसेप्ट्रॉन पे जाके क्या हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ परसेप्ट्रॉन में पहली बार एक चीज इस्तेमाल हुई जिसका नाम था एक्टिवेशन फंक्शन, या अभी इसको हम कह लें एक स्टेप फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्टेप फंक्शन। ठीक है, स्टेप फंक्शन जो है वो क्या करता था, ये दरमियान में हमें नजर आ रहा है, ये वाला जो सेक्शन नजर आ रहा है, ये वेट्स है, मॉडल के क्या है, वेट्स। ये वेट्स हम डिस्कस कर चुके हैं मशीन लर्निंग के अंदर भी, याद है आपको, हम क्या कहते हैं भी W इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस। तो ये जो m है ये क्या होते हैं भाई, स्लोप या मॉडल के वेट्स होते हैं जो मॉडल लर्न करता है, और b की वैल्यू भी मॉडल क्या करता है, लर्न करता। सबको ये बात याद है ना कि ट्रेनिंग कराने के बाद हमने क्या किया, फिट कराया। तो ये वेट से सारे यहाँ जनरेट होते हैं, और एक जो है वो क्या जनरेट होता है यहाँ पर बाय, ये सब इस नोड के ऊपर ये सारा काम होता है। यानी जो हम इनपुट वैल्यू देते हैं, अब मैं इसको करके दिखाता हूं कि एक एज आया, यहाँ पर कोई वेट जनरेट हुआ W1, इसकी कोई वैल्यू हो सकती है 0.004, कुछ भी हो सकती है, मैं तो वैसे ही लिख रहा हूँ। ठीक है, एक और वेट यहाँ से इनपुट आया, इधर जाया, इसने एक और वेट जनरेट किया विच इज W2 0.001, इसने एक और वेट जनरेट किया W3 जी, हाँ वेट ही जनरेट होगा, वेट वाला वेट नहीं, वजन वाला वेट नहीं, ये वजन वाला वेट नहीं है। ठीक है, ये वेट है, ये वाला स्लोप वाला वेट, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। अच्छा, अगर आप कहें तो मैं एक सिंपल डेटा ले लेता हूं। हमने अभी देखो जरा, हमने काम किया हुआ था, हमने एक मॉडल बनाया था कभी, एंड दैट मॉडल वाज कि भाई ये मॉडल क्या करता है, हम इसको हाइट इनपुट देते हैं तो ये क्या प्रेडिक्ट कर रहा था, वेट प्रेडिक्ट कर रहा था। अगर इतना सा मॉडल ले लें तो हमने क्या बोला था भाई, इसकी इक्वेशन क्या बनती है लोगों, हमने कहा कि भाई हमारा जो वेट होता है वो किसके बराबर होगा, यहाँ पर कोई m की वैल्यू होगी मल्टीप्लाई बाय क्या हो रहा होगा हमारा इनपुट हाइट होगा, और कोई चीज इसमें प्लस हो रही होगी विच इज बायस। ये इक्वेशन बनती है ना कि ये हमारा आउटपुट है y इज इक्वल टू m, और ये हमारा इनपुट है x प्लस b। तो यहाँ पर ये जो नंबर जनरेट होता था कोफिशिएंट ऑफ हाइट, इसको हम क्या कहते हैं, वेट। क्या कहते हैं, वेट। मशीन लर्निंग में वेट कहते हैं, मैथमेटिक्स की टर्म में इसको हम स्लोप कहते हैं। ठीक है, तो जो मैं बात कर रहा हूं वो ये वाले वेट की बात कर रहा हूं, वो बंदे के वेट की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं, तो हमारे पास हमने क्या देखा कि हमारे पास एक इनपुट आ रहा है विच इज हाइट। ठीक है, और हाइट में फॉर एग्जांपल वैल्यू लिखी हुई है कोई 5.9। ठीक है, ये हाइट जो है वो जाएगी किसके पास, एक परसेप्ट्रॉन के पास जाएगी। किसके पास, एक परसेप्ट्रॉन के पास जाएगी, एक परसेप्ट्रॉन के पास जाएगी। ठीक है, ये जब परसेप्ट्रॉन के पास जा रही होगी तो हाइट के साथ यहाँ पर एक चीज इस एज के ऊपर, इस लाइन के ऊपर जो इसको कनेक्ट कर रही है, इसको हम एज कहते हैं, इस एज के ऊपर क्या जनरेट होगा, ये वाला स्लोप m, या इसको वेट कह लें, दैट्स व्हाई मैं इसको क्या कह रहा हूँ, वेट कह रहा हूँ। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, वेट कहते हैं। ये वेट की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, छोटी बड़ी मामूली कुछ भी हो सकती है, ये हमें नहीं पता, ये मॉडल का अपनी कारस्तानी। और यहाँ परसेप्ट्रॉन जो है वो क्या करता है भाई, यहाँ परसेप्ट्रॉन यही कैलकुलेशन करता है, ये वाली जो वेट आया। ठीक है, जो वेट आया उसको क्या करता है भाई, यानी क्या बन जाएगा भाई 5.8 मल्टीप्लाई बाय वेट आया 0.0001, और इसके साथ एक और चीज मॉडल जनरेट करेगा जो किसकी वैल्यू है, b की वैल्यू है, ये
यहाँ जनरेट होगा, और ये बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 होती है, जो भी नई वैल्यू आती है फिर वो इसके साथ क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई होके उसको वही वैल्यू बन जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल वो आ गया अभी 0.5। तो इस तरह परसेप्ट्रॉन ने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, एक नया नंबर जनरेट कर लिया। ठीक है, जो आउटपुट आया यानी y आया, वो इनकी कैलकुलेशन से क्या हो गया भाई, एक नया नंबर जनरेट हो गया। अभी तक हमें ये वही कैलकुलेशन लग रही है जो हमारे पास सिंपल किसमें थी, मशीन लर्निंग के सिंपल एल्गोरिथम से थी। लेकिन परसेप्ट्रॉन बेसिकली क्या था, परसेप्ट्रॉन ने बेसिकली क्लासिफिकेशन के टास्क परफॉर्म किए, ना कि रिग्रेशन के टास्क। किसके टास्क परफॉर्म किए, क्लासिफिकेशन टास्क परफॉर्म किए। ये अच्छा क्लासिफायर था। क्या था भाई, अच्छा क्लासिफायर था। इसने क्लासिफिकेशन के टास्क परफॉर्म किए कि भाई ये बंदे की हाइट ये है, ये मर्द है या औरत। हाँ ठीक है, और मैं इसके अंदर अब क्या करता हूँ, दूसरा इनपुट भी दे देता हूँ कि हाइट ये है और वेट ये है, तो आप बताएं कि भाई ये किसी खातून से रिगार्डिंग है या किसी मर्द से रिगार्डिंग है। वेट यहाँ हमने डाल दिया कि भाई 80 किलो वजन है। ठीक है, तो अब परसेप्ट्रॉन के पास कितने इनपुट जा रहे हैं, 2 इनपुट जा रहे हैं, और ये क्या करता है भाई, इन दोनों को क्या कर लेता है भाई, यहाँ पर जमा कर लेता है। तो अब यहाँ पर क्या एक्टिविटी हो रही होगी, यहाँ पर एक्टिविटी हो रही होगी कि जो y की कैलकुलेशन है, समझना जरा, जो y की कैलकुलेशन है, यहाँ मैं कहता हूँ कि भाई ये हमारे पास y है, जो y की कैलकुलेशन है वो क्या है, वो ये है कि आने वाला वेट 5.8 क्या होगा भाई, ठीक है, मल्टीप्लाई होगा आने वाला इनपुट यहाँ पर जनरेट होने वाले किसी वेट से, क्या हो जाएगा। अच्छा मैं इसको कह दूं, अगर ये क्या है, x1 इनपुट है और ये क्या है, x2 इनपुट है, तो मैं यहाँ पर क्या रख सकता हूँ, एक जनरल इक्वेशन लिख सकता हूँ, है ना। वो जनरल इक्वेशन क्या होगी कि y जो है वो बराबर हो जाएगा किसके पास, y बराबर हो जाएगा किसके, कि जो वेट जनरेट हो रहा है W1 उसके साथ मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा, x1। ठीक है, मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जैसे कर रहे थे हम। इसी तरह जो हमारे पास दूसरा वाला M2 है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, W2 जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके साथ, X2 के साथ। एंड फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक बायस की वैल्यू जनरेट हो जाएगी, 1 मल्टीप्लाई बाय बायस। सही है, यस। हाँ ये उसी तरफ आ रहा हूँ ना। परसेप्ट्रॉन क्लासिफायर बना रहे हैं हम कि भाई ये हाइट और वेट है, तो भाई ये मर्द का है या औरत का है। ठीक है, ये फीचर्स जो हैं ये किसी खातून मेल के हैं या फीमेल के हैं, ये क्लासिफाई करना है। अब मसला ये हुआ जैसे इस बच्चे ने कहा, बड़ी जबरदस्त बात की कि भाई इससे तो क्या होगा, एक नंबर जनरेट हो जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, एक नंबर जनरेट हो जाएगा। वो नंबर मुझे कैसे बताएगा कि भाई ये मर्द है या औरत है। हाँ, इससे तो यहाँ वाई में क्या आएगा, कंटिन्यूअस नंबर आएगा। वो नंबर मुझे कैसे बताएगा कि भाई ये मर्द है या औरत है। तो फिर यहाँ पर परसेप्ट्रॉन में जब ये कैलकुलेशन हो गई, तो परसेप्ट्रॉन के जो आउटपुट को निकाल कर कहां से गुजारा गया, एक स्टेप फंक्शन से गुजारा गया। किससे गुजारा गया, स्टेप फंक्शन से गुजारा गया। ठीक है, इस स्टेप फंक्शन ने क्या किया, इस स्टेप फंक्शन ने ये काम किया कि भाई सिंपली ये यूं करके स्टेप बना हुआ नजर आता है सीढ़ी की तरह, इसलिए इसको स्टेप कहते हैं। कि भाई इसने क्या किया, सुनो भाई, अगर y की वैल्यू क्या हो गई भाई, लेस देन 0 हो गई, y की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 हो गई, तो उसने उस वैल्यू को क्या बना दिया, 0 बना दिया।
और अगर y की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो गई तो उसने उस वैल्यू को क्या बना दिया, 1 बना दिया। इस तरह जो भी आउटपुट था या तो वो 0 क्लास में आया या तो वो 1 क्लास में आया। ठीक है, अब ये स्टेप फंक्शन जो है ये लगाया गया। जैसे आजकल के दौर में इस स्टेप फंक्शन का नया नाम रेलू फंक्शन होता है। क्या होता है? रेलू स्टैंड्स फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसका काम ही ये होता है कि नेगेटिव वैल्यूज को 0 कर दिया जाए, पॉजिटिव वैल्यूज को ऐसे ही जाने दिया जाए। ठीक है, या जो पॉजिटिव वैल्यूज हैं उसे 1 कर दिया जाए। तो ये पॉजिटिव वैल्यूज को न्यूरॉन्स में आगे भेजता रहता है और नेगेटिव वैल्यूज को 0 करता रहता है। तो ये स्टेप फंक्शन लगाने की वजह से क्या हो गया भाई, ये क्लासिफिकेशन मॉडल जो है वो काम करने लग गया कि भाई। अच्छा, इतनी बात समझ में आ गई। एक वक्त तक ये सारे मामला चलते रहे और ये अच्छा काम करता रहा, क्लासिफिकेशन अच्छी करता रहा, अच्छी करता रहा। लेकिन फिर क्या हुआ, फिर ये डिस्कशन में आया कि भाई व्हाट अबाउट मैनी क्लासेस। ये मल्टी क्लासिफिकेशन जब होगा तो फिर क्या होगा? ठीक है, जब मल्टी क्लासिफिकेशन होगा तो तीसरा आंसर कहां से आएगा? ठीक है, तो ये वो टाइम था जहां पर ये सारा सिलसिला काफी अरसे क्या हो गया, फेल हो गया, रुक गया। कल सुबह का प्लान बता देना मुझे, क्या करना है यार। सुबह सुबह मैं डायरेक्ट पहुंच जाऊं? चलो सही। अच्छा, जब तक आप लोग ये रिवाइज कर लें जो हमने डिस्कस किया है, फिर मैं बात कर लूँ जरा। नहीं नहीं, पर मुझे वहां भी जाना होगा ना। कल शाम में आ रहे हैं। ठीक है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। अच्छा भाई, तो अब प्रॉब्लम ये हुई कि ये मामला जो है वो, यानी जब सिनारियो कॉम्प्लेक्स हुआ तो परसेप्ट्रॉन क्या हो गया, फेल हो गया। अच्छा, इसमें जो है ना हम क्या करते हैं, इसमें वैसे थियोरिटिकली अगर आप पढ़ेंगे यूनिवर्सिटीज वगैरह में वो काम कराते हैं, क्योंकि हम तो काफ़ी जो है ना वो आगे चल रहे होते हैं। मैं इसमें दिखा देता हूँ फिर भी आपको कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि भाई परसेप्ट्रॉन फेल हो गया, तो इसका मतलब ये है कि जहां, सुनो जरा तवज्जो से, मतलब अगर सिर्फ मर्द और औरत ना हो, कोई तीसरा जेंडर भी हो, तो फिर क्या बोलेगा उसको? 0 1 तो कह दिया, मीन निकाल लेगा उसका 0.5 या मीडियन निकाले। मतलब कुछ भी हो सकता है ना। दो क्लासेस से ज्यादा क्लास हो गई, कुत्ता बिल्ली के अलावा कुछ और लोमड़ी भी आ गई उसमें, फिर क्या हुआ? अच्छा, मैं क्या बता रहा था इसका, अब ये अभी मैंने आपको बिल्कुल लेमैन के अंदाज में समझाई बात कि परसेप्ट्रॉन कहाँ फेल हुआ। जब किसी आप पढ़े लिखे आदमी से बात करेंगे, पढ़े लिखे से मतलब ये है कि जो फील्ड का बंदा होगा, ठीक है, कोई प्रोफेसर होगा, तो वो आपसे ऐसी बात नहीं करेगा। वो आपसे बात करेगा कि भाई परसेप्ट्रॉन जो है वो, परसेप्ट्रॉन जो है वो क्या कर रहा था,
वो ये काम कर रहा था कि भाई जहां जहां डिसीजन बाउंड्री सीधी सीधी हो सकती थी, क्या हो सकती थी, एक क्लास और दूसरी क्लास, वहां वहां परसेप्ट्रॉन जो है वो बड़े मजे से काम कर रहा था। लेकिन जहां पर डिसीजन बाउंड्री जो है वो कॉम्प्लेक्स थी, ठीक है, कि जहां स्ट्रेट लाइन से हमारा काम जो है वो नहीं चल रहा था, वहां परसेप्ट्रॉन क्या होने लगा, फेल होने लगा। ठीक है, वहां पर मुझे एक लीनियर स्टेप फंक्शन की जरूरत नहीं थी, वहां तो स्टेप फंक्शन तो काम कर रहा था कि भाई 0 और 1, ठीक है, एक डिसीजन बाउंड्री जो है बन रही थी कि भाई ये x है और ये y है, ये a है और ये b है, वॉट एवर। लेकिन जस्ट लाइक यहां पे देखो, ठीक है, लीनियर लाइन काम नहीं कर रही, तो हमें जो है ना वो कुछ और सिनारियो जो है वो लगाना पड़ेगा। अब वो क्या था देखो, मैं एक चीज करके दिखाता हूं ताकि ये बात मुकम्मल हो जाए। पता नहीं मुझे खुद तसल्ली नहीं हो रही जब तक मैं ये बात ना कर लूं। देखो हमारे पास जो है ना, हमारे पास क्या है, हम क्या इंप्लीमेंट करते हैं, परसेप्ट्रॉन की मदद से हम एक बनाते हैं एंड गेट। क्या बनाते हैं, एंड गेट। एंड गेट क्या करता है, हाँ हाँ, अब एंड गेट में मेरा एक इनपुट क्या हो गया, x1, तवज्जो से जरा, और एक इनपुट हो गया x2, ठीक है, और एक मेरा क्या हो जाएगा, बायस, विच इज बाय डिफॉल्ट 1 है, जो मॉडल जनरेट करेगा वैल्यू उसके साथ मल्टीप्लाई होकर वही वैल्यू बन जाएगी, 0.2 मल्टीप्लाई 1.2। और एक मेरे पास है प्रेडिक्शन। क्या है मेरे पास, प्रेडिक्शन। अब हमें मालूम है कि जब मैं 1 इनपुट दूंगा और दूसरा भी 1 इनपुट दूंगा तो आउटपुट क्या आएगा, 1 आएगा। सबको पता है ये बात। अच्छा मैं एक 1 इनपुट दूंगा और दूसरा भी क्या दूंगा, 0 इनपुट दूंगा, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। और एक इनपुट 0 दूंगा, दूसरा इनपुट यहां, और नहीं अभी, ये भी क्या हो गया, 0 हो गया। और आखिरी में सब कुछ ही क्या हो गया, तो क्या हो गया हमारे पास, 0 हो गया। हटा भी सकते हैं, कोई ऐसा आप परेशान नहीं हो, बायस लिखा हुआ है उसमें, जो भी मॉडल जो बायस लेकर आएगा वो अरेंज कर लेंगे हम। ठीक है, ये हमारे पास जो है ना मामला है, ये हमारे पास डेटा है। अच्छा अब मुझे पता है इस मॉडल की, मैंने इसके लिए इस चीज के लिए मैंने एक मॉडल लिखना है, इस चीज के लिए मैंने क्या लिखना है, एक अदद मॉडल लिखना है। और वो मॉडल क्या करेगा भाई, वो हमें y प्रेडिक्टेड देगा। और क्या क्या होगा मॉडल भाई, W1 होगा और उसके साथ x1 होगा प्लस W2 होगा और उसके साथ x2 होगा प्लस b होगा, ठीक है, प्लस क्या होगा, b होगा। तो ये इक्वेशन से हमारे पास क्या निकल आएगा, y प्रेडिक्ट आ जाएगा। अब मैं आप लोगों से कहता हूं कि ऐसे डब्ल्यूज और बायस चूज करें कि ये चीज क्या हो जाए, क्लासिफाई हो जाए, प्रूव हो जाए। मसलन इस इक्वेशन का आउटपुट जो है वो ये 1 0 0 0 शुरू हो जाए, कि मैं अगर मेरे पास कोई ना कोई वेट होगा ना, मॉडल क्या करता है, मॉडल में ये चीज फिक्स होती है और इनपुट भी फिक्स होते हैं, सिर्फ बायस और डब्ल्यू चेंज होते हैं ना, बायस और स्लोप और इंटरसेप्ट चेंज होता है ना। तो अब मैं चाह रहा हूं कि आप ऐसे स्लोप और इंटरसेप्ट रखें कि प्रिडिक्शन और ओरिजिनल वैल्यू दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए।
क्या रखें? हाँ, जैसे मैं कहता हूं कि भाई हमारा क्या होगा भाई, x1 इसको किससे मल्टीप्लाई करूं प्लस x2 इसको किससे मल्टीप्लाई करूं प्लस 22 यानी जो 1 है इसको किससे मल्टीप्लाई करूं कि ओवरऑल आंसर क्या हो जाए, 1 हो जाए। अच्छा, आपने कहा भाई मैं यहां क्या रखता हूं, W1 भी 1 रखा, समझना, W1 0 रख दिया, W2 हाँ भाई एक पे तो रहो, 1 रख दिया, और 22 क्या रख दिया, 1 रख दिया, तो ओवरऑल आंसर क्या बन गया, ओवरऑल आंसर 2 बन गया। अब 2 बन गया तो मैं इसके ऊपर परसेप्ट्रॉन लगाऊंगा तो 2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी पॉजिटिव आंसर क्या बन जाएगा, 1। मसला ये है कि ये एक इनपुट तो क्या हो गया, सेटिस्फाई हो गया, क्या इन्हीं वेट्स के ऊपर बाकी सेटिस्फाई हो रहे हैं? मैं इसको क्या करता हूं, नीचे ड्रॉप करता हूं, ये तो सारे ही 1 हो गए, सारे ही क्या हो गए, इसका मतलब वो जो डब्ल्यूज आपने चूज किए हैं दीज आर नॉट गुड, सारे मॉडल जो है ना उस पर नहीं चल रहा है। ठीक है, अब बताएं क्या रखूं, दोनों डब्ल्यूज को 1 कर दूं, इसको भी 1 कर दिया, इसको भी 1 कर दिया, तो ये पॉजिटिव हो गया और सारे अभी भी पॉजिटिव हैं। अच्छा, ये कह रहे हैं कि 22 को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए, तो ये पॉजिटिव हो गया, तो दोनों वेट 0 लगा लेंगे तो फिर वो वैल्यू 0 मान ले जाएंगे सारे। अगर दोनों डब्ल्यूज क्या कर दूं, 0 कर दूं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है भाई, तो ये एक 1 हो गया, लेकिन ये सारे 0 हो गए। अब क्या रखूं फिर, हाँ वी आर मॉडल नाउ, अभी हम मॉडल वाला काम कर रहे हैं, हम एज अ मॉडल बिहेव कर रहे हैं। हाँ भाई 22 को 1 कर दूं, ये 1 हो गया और सारे 1 हो गए, तो सिर्फ 1 0 में क्यों खेल रहे हो, आगे भी तो बढ़ सकते हैं। अगर मैं इसको 2 रख दूं, इसको भी 2 रख दूं और इसको -2 रख दूं, हाँ भाई ये पॉजिटिव 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया और ये भी क्या हो गया, 0। अच्छा मुझे तो पता था इसलिए मैंने रख दिया। अब बात ये है कि ऐसे वेट्स मुझे मिल गए 2 2 और -2 जिसने इस एंड गेट को परसेप्ट्रॉन से क्या कर दिया, सेटिस्फाई कर दिया। अच्छा चलो ठीक है, एंड गेट सेटिस्फाई हो गया, जरा और गेट भी करके दिखा दो। और गेट में क्या होता है भाई, एक भी ट्रू तो सब ट्रू, ये फॉल्स हो गया, ठीक है। किसका, रेलो नहीं है अभी, रेलो तो मैंने मिसाल के तौर पर बताया था, बेसिकली एक स्टेप फंक्शन है, ठीक है। रेलो जो है पॉजिटिव की कोई भी वैल्यू उसको वैसे ही जाने देता है, 1 में कन्वर्ट नहीं करता, हमारा स्टेप फंक्शन 1 कर देता है, लेकिन नेगेटिव को रेलो भी 0 करता है, लीकी रेलो नहीं करता। अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब यहां दोबारा आपको चूज करना है, हाँ भाई अब दोबारा क्या करना है भाई, चूज करना है कि भाई क्या हो सकता है, C13 D13 और, ठीक है
ये वाली मुझे याद भी नहीं है। सी क्या है अभी? 14, सॉरी 14, 14, ठीक है, ये ट्रू, ठीक है। इसको अगर मैंने इन्हीं वैल्यूज पे किया तो ये क्या हो गया जीरो, 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 सारे जीरो हो गए। अब यहां पर क्या वैल्यू रखूं? हाँ, 1 1 कर दूं, 1 1 कर दिया, यहां पर भी 1 कर दिया। क्या फॉर्मूला गलत हो गया? C15, अच्छा रुक जाओ, यहां पर आ गया C14 D14, ठीक है, ये हो गया दिस, ये सारे ही पॉजिटिव हो गए यार। हाँ, इस सिनारी में सब 1 हो गए। मैं यहां पर लगा देता हूं, स्टेप फंक्शन भी लगा देता हूं, इफ दिस ग्रेटर देन 0 तो क्या हो जाए, 1 हो जाए, एल्स 0 हो जाए। सही है। तो अब क्या रखूं यार? वन रखूं, -1 रखूं, और बायस में क्या रखूं? 0, ये तो 0 ही हो गया, पहले ही गलत हो गया। क्या रखूं? बायस 1 कर दूं, ये 1 हो गया, W2 को क्या कर दूं? और सारे 1 हो गए। हाँ, पहले -2, भाई ऐसे बहुत देर लगी, जरा सर्च करो क्या होनी चाहिए W की वैल्यू और गेट के लिए। हाँ, नेट नहीं चल रहा, जब भी तुम लोग सुकून से बैठे हो, वरना अब तक जवाब आ जाता। जीरो 1, जीरो 1 और ये कुछ लग रही है, कुछ याद आ रही है, माइनस, हो गया भाई। हाँ, तो हमारे पास W1 1 हो गया, 1 1 और -0.5 हो गया ये, तो इस पर जो है हमारे क्या हो गए। अच्छा, अब जरा इसको समझें कि हमारे पास बेसिकली जो आउटपुट बने वो कुछ यूं बन गए कि भाई दिस एंड दिस, तो ये आराम से क्या हो रहे हैं भाई,
एक डिसीजन बाउंड्री बन रही है, एक क्लास अलग जा रही है और दूसरी क्लास कहाँ जा रही है, अलग जा रही है, ठीक है। लेकिन 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 अगर यही कॉम्प्लेक्स हो जाए, कॉम्प्लेक्स कैसा कॉम्प्लेक्स हो जाए कि अगर मैं कहूं कि भाई क्या इंप्लीमेंट करना है, अगर मैं कहता हूं कि भाई जोर गेट इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। जोर गेट क्या काम करता है, अगर सारे सेम हो तो फिर वन होता है, उल्टा वन होता है। चेक कर लेते हैं भाई, याद रखना। अभी अभी यहां देख लेते हैं, अभी यहां देख लेते हैं। ये हमारे पास जो है सेम पे 0 है, डिफरेंट डिफरेंट पे जो है वो 1 है। अच्छा, ये इसकी डायग्राम अगर आपने देखी हो तो ये किस तरह डिजाइन हुआ होता है, नजर आ रहा है कि भाई ये एक इनपुट ए है, ठीक है, और जो बी आ रहा है उसको क्या किया जा रहा है, नॉट कर दिया जा रहा है, रिवर्स कर दिया जा रहा है। और फिर आगे क्या हो रहा है, ए और बी का क्या हो रहा है भाई, प्रोडक्ट हो रहा है, और फिर यहां से वही प्रोडक्ट जो है वो दूसरे गेट से भी आ रहा है। और अब ऐसे सिनारियों में ना, ऐसे सिनारियों में जो हमारे पास रिजल्ट आता है वो इस तरह से आता है, 1 0 0 1। मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि आपने एंड गेट और ऑर गेट इंप्लीमेंट किया है, जोर गेट के लिए भी यही काम करें, तो जोर गेट के लिए पॉसिबल नहीं है। ये हमारे 1965 में साइंटिस्ट थे मार्विन मिन्स्की। कौन, मार्विन मिन्स्की। इन्होंने जो है ये वाला इश्यू उठाया कि भाई ये जो आपका परसेप्ट्रॉन है, ये बाइनरी क्लासिफायर में तो क्या हो रहा है, सही काम कर रहा है। और इन्होंने प्रूफ करने के लिए यही काम किया, इन्होंने एंड गेट और गेट किया, इन्होंने कहा जोर गेट इंप्लीमेंट कर रहा हूं, नहीं हो रहा। और इसी से उन्होंने आगे ड्राइव की चीजें, उनका भाई ये मल्टी क्लासिफिकेशन में परसेप्ट्रॉन जो है वो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहां पर कोई ऐसी लाइन ड्रॉ करो डिसीजन बाउंड्री जिससे ये दोनों क्लासें अलग अलग हो जाए, सीधी लाइन बनाओ। कैसे बनाऊं, कैसे बनाऊं, ऐसे कर दूं, फिर ऐसे कर दूं, फिर ऐसे कर दूं, ऐसे कर दूं, कहीं से भी नहीं हो रही ना, कहीं से भी नहीं हो रही। तो इसका मतलब कोई लीनियर फंक्शन इसका मसला हल नहीं कर सकता। तो जो स्टेप फंक्शन हम यूज कर रहे थे, वालेकुम, भेजता हूँ भेजता हूँ भेजता हूँ। तो ठीक है, तो जोर गेट फेल हो रहा, तो इन्होंने फिर ये क्या किया, अभी द प्रॉब्लम विद परसेप्ट्रॉन इन्होंने डिफाइन किया और कहा कि भाई, और उसका सॉल्यूशन दिया बाद में। सॉल्यूशन में टाइम लगा, 5-6 साल लगे सॉल्यूशन में, कि भाई हम क्या बनाएं, फिर एक मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन बनाए, एंड दैट वाज द बेसिस ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स। कि भाई ये शुरू हुआ। व्हाई डिड मार्विन क्लेम दैट मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन वाजंट लाइकली गोइंग टू वर्क विदाउट गिविंग मच एविडेंस। हाँ हाँ, वो तो आगे चलते रिसर्च पूरा काम जो है ना आगे बढ़ता रहा। तो अच्छा, हम बात कर रहे थे कहाँ पर, कि ये स्टेप फंक्शन जो है बाइनरी क्लासिफिकेशन तो जो है वो कर रहा। तो ठीक है, हम परसेप्ट्रॉन इंप्लीमेंट करके कोई बाइनरी क्लासिफायर तो बना लें पहले, फिर हम चलेंगे मल्टी न्यूरॉन नेटवर्क के ऊपर कि हाउ डज इट वर्क्स।
تو آپ نے باइनरी क्लासिफिकेशन की कौन सी एग्जाम्पल पढ़ी थी? बाइनरी क्लासिफिकेशन का डाटा कौन सा था? डायबिटीज वाला डाटा था जिसमें क्लास डिसबैलेंस था, हमने किया था उसको। तो उसको परसेप्ट्रॉन से भी करके देख ले, करना कुछ नहीं, जैसे लॉजिस्टिक रिग्रेशन का एक मॉडल क्रिएट करते हैं इंपोर्ट करके, वैसे ही क्या करेंगे आप परसेप्ट्रॉन का कर लेंगे। तो अगर यहाँ पर आप देखें ये एक छोटा सा यहाँ पर कोड दिया हुआ है, मैं यही ले लेता हूँ। देखो जरा जल्दी से ये काम हो जाएगा। मशीन लर्निंग भी पार्ट है। हाँ, बट अब हम एक ऐसे एज पे खड़े हैं जहाँ मशीन लर्निंग से किस में घुसने वाले हैं। हाँ, अच्छा अच्छा, इसीलिए कहते हैं होश में रहा करो, इधर उधर नहीं घुसा करो, वरना कहीं से घुसोगे कहीं से निकलोगे। अच्छा, हमने एक लोड डिजिट्स का जो है ना डाटा सेट ले लिया है और उसका एक्स वाई चेक करते हैं कि उसके एक्स वाई में क्या है। एक्स में देखते हैं ये डाटा आ रहा है एरे की फॉर्म में, और वाई में क्या आ रहा है 0 1 2 8 से लेके 9 तक का। अच्छा, ये बेसिकली एक्स डॉट शेप अगर मैं देखूं तो 1797 रिकॉर्ड्स हैं और 64 इसके कॉलम्स हैं। कितने कॉलम्स हैं इसके अंदर? तो सोचो कितने डब्ल्यू जनरेट होंगे, W1 W2 W3 W4 64। यानी परसेप्ट्रॉन में कितने इनपुट जाएंगे यहाँ से 64, और यहाँ पर 64 की कलेक्शन इक्वेशन जो है वो क्या हो जाएगी, बन जाएगी। क्लियर है बात? तो क्या किया जी, लोड डिजिट किया और क्लासिफायर के तौर पे किसको लिया हमने, परसेप्ट्रॉन के। अभी टॉलरेंस वगैरह को छोड़ दें, रैंडम स्टेट वही वाला काम करते हैं जो हम पहले से देख के आए। क्लासिफायर दें, क्लासिफाई किया, मॉडल क्या कर लिया भाई, ट्रेन किया, ठीक है, और हमने फाइनली उसका क्या निकालना है, ये मॉडल फिट हुआ, एंड देन हमने कहा कि भाई मॉडल फिट, ज़रा अपना स्कोर बताओ क्लासिफिकेशन में। अभी इसमें कोई ट्रेनिंग टेस्टिंग डाटा नहीं लिया है ना, 93.9% डाटा जो है वो क्या हो गया है, सही क्लासिफाई हो गया। ठीक है, बस जस्ट यूजिंग वन वन ही माइनस थ्री वाली जी करते हैं हम ट्रेंड। अभी हमने डायरेक्ट किया है सिर्फ देखने के लिए कि परसेप्ट ट्रेंड जो काम कर क्या करते हैं। टॉल वन ही माइनस अरे टॉलरेंस लेवल जो है ये हमारे पास एक वैल्यू होती है जिसके अंदर हम, आपने कभी स्टैटिस्टिक्स में पढ़ा होगा, देयर आर समथिंग कॉन्फिडेंस लेवल, कॉन्फिडेंस इंटरवल, पढ़ा है कुछ याद है? हाँ, कॉन्फिडेंस इंटरवल नहीं पढ़ा? मुझे इम्पोर्टेंट बताया था यूनिवर्सिटी वाले, मुझे पढ़ के आया। अच्छा, इम्पोर्टेंट बताइए। The stopping criteria, if it is none, the iteration will stop when loss जो है वो क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा प्रीवियस वैल्यू से। अब इसमें अब बात जब आई किसके ऊपर, देखो यहां पर जब परसेप्ट्रॉन फेल हुआ ना तो काम रुक गया बिल्कुल, और कई सालों तक रुक गया। और इस काम रुकने को लोग क्या कहते हैं भाई, एआई विंटर। ठीक है, एआई विंटर आ गया, एआई खिजा आ गई, मतलब लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, कंपनीज ने इन्वेस्ट करना छोड़ दिया कि भाई कि बाइनरी क्लासिफिकेशन तक तो मामला सही है लेकिन उससे आगे जा ही नहीं रहा। तो बात क्या हो गई, खत्म हो गई, बात खत्म हो गई।
हाँ ऐसा ही है, ठीक है। तो क्या क्या हुआ अभी एआई विंटर में? रिड्यूस फंडिंग, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, स्लो प्रोग्रेस, काजेस ऑफ क्या थे भाई? ओवर प्रोमिसिंग कर दिया था लोग, अब बहुत वादे कर लिए थे लेकिन नहीं हो नहीं रहे थे। अगर मैं पूछूं इससे भाई, व्हाट काज्ड फर्स्ट एआई विंटर, दो दफा आई है ना? 10 साल तक हाँ। जमाने में कंप्यूटर भी रहते बारिश। So this was the time when a period of deep skepticism about the future of AI, with many believing that the field has reached its limit. ये जो वर्ड है लिमिट तक, ये वही था कि भाई मॉडल्स अब इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। बट लोग लगे रहे ढके छुपे अपनी पर्सनल कैपेसिटी के अंदर, विद लो फंड्स एंड सारी चीजें, एंड लोगों ने एक्टिवेशन फंक्शन जनरेट किया। ये एक्टिवेशन मतलब वैसे तो लग रहा है यार एक्टिवेशन फंक्शन तो जनरेट किया है, वो तो हमारे सामने है तो हमें आसान सी बात लग रही है, बट जब वो नहीं था तो लोगों ने मामला जो है वो जनरेट करवाए। इसमें क्या हुआ भाई? इसमें हमने जैसे हमने पढ़ा हुआ एक्टिवेशन में, क्या पढ़ा हुआ भाई? कौन कौन से पढ़े हुए? सिग्मॉइड फंक्शन पढ़ा हुआ है। किस में पढ़ा हुआ है? लॉजिस्टिक रिग्रेशन में, ठीक है। और इसी तरह हमारे पास कौन सा वाला होता है अभी? सॉफ्टमैक्स फंक्शन होता है। कब कौन सा इस्तेमाल होता है? हाँ, सिग्मॉइड हमारे पास इस्तेमाल होता है किसमें? बाइनरी क्लासिफिकेशन में। और सॉफ्टमैक्स हमारे पास इस्तेमाल होता है किसमें? मल्टी क्लासिफिकेशन में। इसने क्या किया? परसेप्ट्रॉन से परसेप्ट्रॉन से निकलने वाले आउटपुट को जब सिग्मॉइड से गुजारा गया तो पहले पहले क्या था? पहले तो था स्टेप फंक्शन। इसने उस स्टेप फंक्शन की जगह उस फंक्शन की लीनियरिटी को कन्वर्ट कर दिया नॉन लीनियरिटी में, यानी डिस्क्रीट 0 1 को कन्वर्ट कर दिया कंटिन्यूअस फ्रॉम 0 to 1, कंटिन्यूअस वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया। एंड दीज कंटिन्यूअस वैल्यूज वर दी प्रोबेबिलिटीज। क्या थी ये? प्रोबेबिलिटीज थी। तो सिग्मॉइड के केस में तो जाहिर दो ही क्लासेस होती हैं, तो अगर प्रोबेबिलिटी थ्रेशोल्ड 0.5 से ऊपर है, हमने पढ़ा हुआ भी है ये, तो वो क्लास ए को ब्लैंक करेगा, और अगर नीचे है तो बी को ब्लैंक करेगा। बट सॉफ्टमैक्स के केस में अगर मेरे पास 10 क्लासेस हैं तो इट रिटर्न्स 10 प्रोबेबिलिटी स्कोर्स। कितने स्कोर देता है भाई? 10 प्रोबेबिलिटी स्कोर देता है। उनमें से जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है, हम ये कहते हैं कि सिंस दिस क्लास हैज मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, तो वेरी मच लाइक्लीहुड लाइज विद दिस क्लास कि ये इस कैटेगरी से बिलोंग करता है। सिग्मॉइड में और सॉफ्टमैक्स में बाइनरी क्लासिफिकेशन और मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। सॉफ्टमैक्स समझ नहीं आया? देखो देखो हमारे पास जो सॉफ्टमैक्स फंक्शन है उसका फॉर्मूला कुछ यूं होता है। हाँ, ये फार्मूला एक्सप्लेन करता हूं मैं कुछ इस तरह से। बातें कर रहे हो तुम लोग, जब बात आगे निकले कहना सॉफ्टमैक्स क्या होता है, भाई पूछोगे भाई।
भाई, कॉपी कैसे होगा? ये हमारे पास सॉफ्टमैक्स फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर समेशन ऑफ ऑल इजी एंड जेस, इसको अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखूं, ओपन करके लिखूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 3 क्लासेस हैं, कितनी? 3 क्लासेस हैं अगर, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ आई में क्या हो जाएगा भी पहले 1, तो क्या हो जाएगा भाई ई जी और एक्सपोनेंशियल ऑफ जो भी आंसर आया है, आउटपुट आया है, उसका एक्सपोनेंशियल, और नीचे क्या हो जाएंगे भाई, टोटल क्लासेस कितनी है? 3 है, तो क्या हो जाएगा भाई इजी 1 प्लस इजी 2 प्लस इजी 3। तो ये जो आंसर होगा, दिस आंसर विल बी बिलोंग प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। हाँ, अच्छा, के और जे सिर्फ काउंटिंग है, स्टार्टिंग फ्रॉम के एंडिंग ऑन जे, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 लिख देते हैं हम लिमिट्स के अंदर, ठीक है। जैसे मैं समेशन में लिखूं अपने परसेप्ट्रॉन वाले केस में कि ऑल डब्ल्यूज एंड एक्स ऑन स्टार्टिंग फ्रॉम I1 to IN, तो यहां मैं लिख दिया I और I प्लस 22। अब अगर हमारे पास यहां पर क्या हो, 5 इनपुट हैं, तो ये आई से लेके एन तक 5 हो गई, जो W1 X1 W2 X2 W3 X3 सबका समेशन। तो यहाँ पर आई लिखा हुआ एक वेरिएबल के तौर पे, लूप चलता रहेगा, उसमें वैल्यू आती रहेंगी, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके एन यानी 5। सिमिलरली ये काम किया हुआ, तो 3 ये हमारे पास टोटल जितनी क्लासेस हैं उनकी प्रोबेबिलिटी ओवर दिस प्रोबेबिलिटी, ये हमारे पास इजी 1 यानी पहली क्लास की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। फिर इसी तरह 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो अब ये तो बात समझ में आ गई, अभी काफी सारे लोगों को समझ में नहीं आया हुआ है कि हुआ क्या है। बेसिकली हमारे पास अगर डेटा के अंदर क्लासेस हैं, कौन कौन सी हैं भाई, एक स्टूडेंट जो है वो ए ग्रेड ले लेगा, बी ले लेगा या सी ले लेगा, कितनी क्लासेस हैं, तो मेरा जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, प्रिडिक्शन में आउटपुट क्या आएगा, प्रिडिक्शन में मेरे पास 3 प्रोबेबिलिटीज आएंगी, प्रोबेबिलिटी 1, प्रोबेबिलिटी 2 और प्रोबेबिलिटी 3। कितनी प्रोबेबिलिटी आएंगी, 3 प्रोबेबिलिटीज आएंगी। तो 3 प्रोबेबिलिटीज, मेरा आंसर क्या होगा, जिसकी प्रोबेबिलिटी सबसे क्या होगी, हाई होगी, वो हमारा क्या होगा, मैक्सिमम लाइक्लीहुड में जाएगा कि ये डाटा इस क्लास से बिलोंग करता है, यानी स्टूडेंट जो है वो बी ग्रेड स्कोर कर लेगा। तो सॉफ्ट मैक्स जो है, और ये टोटल प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा भाई, 1। टोटल प्रोबेबिलिटी स्कोर जो है वो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। वही उस क्लास से बिलोंग करता होगा। अब इस चीज को करके देखें। हाँ भाई, मैं एक डेटा सेट लेता हूं, क्या करना चाहिए, हाँ यार गले में तो बंद हो गई। अब यहां पर देखो, चलो थोड़ी बात को आगे बढ़ाते हैं, पहले चलें क्या मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन न्यूरल नेटवर्क के अंदर। हाँ, बस जो हम यहां पर देख रहे हैं
इसी को हम क्या करें, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन में कन्वर्ट कर लें। रादर देन ड्राइंग मैं यहां लिख देता हूं, ये जो हमें शेप्स नजर आ रही हैं, ये क्या है भाई, न्यूरल नेटवर्क। ठीक है, यही हमारे पास क्या है, मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स कि अब इसके अंदर लेयर्स जो हैं वो परसेप्ट्रॉन्स की शामिल हैं। बहुत सारे चेनिंग लेयर्स आपस में चेन हो रही हैं और हर लेयर के अंदर न्यूरॉन्स जो हैं वो आपस में क्या हो रहे हैं, चेन हो रहे हैं। तो आसान सी डायग्राम भी ले लेते हैं। चलो, अगर ये वाली समझ में आ रही कि ये हम इनपुट दे रहे हैं और इनपुट के बाद हमने बीच में 2 लेयर्स इंस्टॉल की हुई है। कितनी लेयर इंस्टॉल की है, और आखिर में हमारा आउटपुट है। इसका मतलब तो ये ऐसी अभी तो हमने कोई बात की नहीं है कि लेयर का ताल्लुक क्लासेस से है। ठीक है, ऐसा नहीं। देखो यहां आउटपुट में कितने न्यूरॉन आ रहे हैं, एक न्यूरॉन आ रहा है। सुनो भाई तवज्जो से, आउटपुट में एक न्यूरॉन आ रहा है। इट इज क्वाइट पॉसिबल कि ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये रिग्रेशन प्रॉब्लम का है। किसका है, क्योंकि रिग्रेशन में मल्टीपल आंसर्स तो नहीं आते, एक ही वैल्यू आती है, कंटिन्यूस वैल्यू, एक ही आंसर प्रेडिक्ट होता है, वहां प्रोबेबिलिटी नहीं होती। ये भी हो सकता है कि ये जो है ये बाइनरी क्लासिफायर हो। क्या हो, बाइनरी क्लासिफिकेशन हो, यहां पर सिग्मॉइड लगा हुआ हो। ठीक है, और सिग्मॉइड जो है वो जो पॉजिटिव क्लास है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या कर रहा हो, यहाँ शो कर रहा हो कि भाई मैं मॉडल बना रहा हूँ कि स्टूडेंट पास होगा या नहीं होगा। तो अगर उसकी प्रोबेबिलिटी स्कोर 0.5 से ज्यादा है तो उसका मतलब पास होगा, 0.5 से कम है तो नहीं होगा। ठीक है, और अगर यहां पर सॉफ्ट मैक्स लगा होता तो यहां पर आउटपुट में एक से ज्यादा न्यूरॉन होते। ठीक है, यहां आउटपुट में क्या होते, एक से ज्यादा न्यूरॉन होते, क्योंकि फिर हर क्लास की अलग अलग प्रोबेबिलिटी हर न्यूरॉन पे क्या होती हमें नजर आती। ये बात समझ आ रही है? ठीक है, क्या समझ नहीं आया, ये डायग्राम समझ आ रही? ये जो बहुत सारे परसेप्ट्रॉन हैं या न्यूरॉन हैं, ये एक साथ वर्टिकली मिल जाते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, लेयर। तो इसमें कितनी लेयर्स हैं, इसमें बुनियादी तौर पर 4 लेयर्स हैं। एक लेयर के थ्रू इनपुट दे रहे हैं। अच्छा, डिफरेंट फिनोमिना होते हैं इसके अंदर। बास जगह जो इनपुट वाली लेयर होती है उसको काउंटिंग में शामिल नहीं किया जाता, कि हम कहते हैं भाई असल में 3 ही लेयर है, वो तो इनपुट है बस। वो कहीं जो है वो इनपुट को भी लेयर में कह दिया जाता है, तो हम हमें 4 लेयर लग रही। सही है? सर एक सवाल, दोनों के अंदर सेम फॉर्मूला लगा नहीं, कौन सा फार्मूला? तो आपने वाला बताया, वो फार्मूला तो सेम रहेगा। दोनों में सेम लगेगा। हाँ, अब देखो होता कैसा है, अब जरा इसको हम देख लेते हैं। अब हम एक, मेरे पास इनपुट है, कितना इनपुट है भाई, मैं कहता हूँ भाई वही जो हम पहले काम कर रहे थे कि हमारे पास क्या है भाई, एज है, और क्या है भाई, हाइट है, और क्या है भाई, वेट है। ठीक है, बस 3 चीजें काफी हैं। चलो, और दिस दिस और दिस, दरमियान में मैंने कहा कि मैं एक लेयर लगा रहा हूं जिसमें कितने नोड हैं, क्यों 4 क्यों है भाई, या 3 क्यों है भाई, और फिर एक लेयर लगा रहा हूं, और फिर एक लगा रहा हूं। अब होगा क्या, अब होना ये है देखो कि
एज जो है इस परसेप्ट्रॉन पे गई, अभी आप अज्यूम करो कोई है ही नहीं हमारे पास ना, हाइट भी जो है वो कहाँ गई, इस न्यूरॉन पे गई, वेट भी जो है वो कहाँ गई, इस न्यूरॉन पे गई, और यहाँ पर वही कैलकुलेशन हुई। कौन सी कैलकुलेशन? समेशन ऑफ ऑल डब्ल्यूज एंड एक्सेस प्लस बी एंड जो रिजल्ट आया उसको मैंने गुजारा एक एक्टिवेशन फंक्शन के अंदर। अब वो एक्टिवेशन फंक्शन कौन सा होगा? हमारी चॉइस का होगा। देयर आर टू मैनी एक्टिवेशन फंक्शंस, ठीक है। जो सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स हैं वो लास्ट लेयर के होते हैं क्योंकि वो प्रोबेबिलिटी रिटर्न करते हैं। यहाँ हम रेलू और कौन कौन से होते हैं? आप यहां पर देखें, रेलू भी है, एलू भी है, पेलू भी है, हाँ हाँ सारे। रेलू फॉर रेक्टिफाइड लीनियर यूनिट। इसी तरह ये देखो सीलू भी है भाई, ठीक है। इसका मतलब है कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएबल एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट, सेलू। आ गया इलू, ठीक है, एक्सपोनेंशियल लीनियर यूनिट। और इसी तरह हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी है, गीलू भी है भाई, गीला करके मारेगा तुम वही है। और गुल्लू भी है, गेटेड लीनियर यूनिट, हार्ड श्रिंक, हार्ड सिग्मॉइड, ठीक है, हार्ड सेलू, तो हार्ड गीलू भी होगा फिर, हाँ। हाइपरबॉलिक टेंजेंट हार्ड, लीकी रेलू, लीनियर फंक्शन, ये रेलू है, लॉग सिग्मॉइड। अब ये क्या हो रहा है? बेसिकली ये हो रहा है कि जब एक बार हम एआई विंटर से निकल आए, किसी एक साइंटिस्ट ने सिग्मॉइड फंक्शन इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। सिग्मॉइड फंक्शन मैंने बताया था क्या करता है, उसको आप कोई सी भी वैल्यू दे दें, वो इस इक्वेशन में डालेगा उस वैल्यू को, और उसका आंसर विल ऑलवेज बी बिटवीन 0 and 1 इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। ये इस फंक्शन की खासियत है। अब ये हम लिखने को तो लिख दे रहे हैं यार, ठीक है यार, फंक्शन लिख दिया, सालों लगे इसको ड्राइव करने में, इसको ढूंढ निकालने में। जब ये मामला हुआ तभी जो परफॉर्मेंस ऑफ न्यूरॉन्स है वो इंप्रूव हुई, अदरवाइज विंटर था। हाँ, अब क्या हुआ? अब एक ने जब मार्केट में फेंका तो उनको आइडिया मिल गया कि हमने सिर्फ क्या करना है, उस लीनियरिटी को किसी तरह क्या करना है, नॉन लीनियरिटी में कन्वर्ट करना है। पता नहीं चलता, अप्लाई करने के बाद पता चलता है, जैसे शादी करने के बाद पता चलता है ना, वैसे जो खाए पछता है, जो ना खाए पछता है। अभी खा के पछता है, चल ठीक है। तो भाई अब बात क्या है, जब सबको ये पता चल गया देयर इज अ टेक्निक के लीनियरिटी शुड बी कन्वर्टेड इनटू नॉन लीनियरिटी, तो अब हर एक अपने अपने फंक्शन इन्वेंट होने लगे जो सेम काम कर रहे थे, बट उनकी टेक्निक डिफरेंट थी। ऐसा नहीं था कि बाबा आप बेटा उसे हर महीने में दे रहे, ऐसा नहीं भाई, हर एक फंक्शन आने में लोगों की सालों की रिसर्च, कोई मैथमेटिकल फार्मूला या फंक्शन मार्केट में फेंकने के लिए सालों की रिसर्च के बाद, तो आज के दौर में हमें ये इतने सारे जो है वो नजर आ रहे हैं। एंड एवरीवन, हर एक का काम क्या है, वही लीनियरिटी को, यानी स्टेप फंक्शन को दो डिस्क्रीट वैल्यू को किस में कन्वर्ट करना, कंटिन्यूअस वैल्यू में कन्वर्ट करना। सिग्मॉइड का असल में हमें आंसर्स चाहिए प्रोबेबिलिटीज के अंदर, ठीक है, और वहां पर हमें प्रोबेबिलिटी में आंसर नहीं चाहिए क्योंकि अभी तो वो वहां प्रोसेसिंग चल रही सारी, तो लास्ट स्टेज के ऊपर हम सिग्मॉइड और सॉफ्टमैक्स जो है उसको इंप्लीमेंट करते हैं। तो अब यहां पर हो गया, फिर यही मामला कहां चलेगा भाई,
ये वाली नोड पे, और यही इक्वेशन यहां पर भी आ जाएगी विद सम अदर। वैसे हम एक लेयर में एक ही लगाते हैं, एक लेयर में एक ही टाइप का एक्टिवेशन फंक्शन होता है। फिर यही मामला जो है वो कहां चलेगा, दूसरी वाली के अंदर। बेटा वेट तो चेंज हो रहे ना, कैलकुलेशन में वेट तो वैल्यू तो हर एज पे चेंज हो रही है, तो वैल्यू तो चेंज हो रही है। ठीक है, तो हर एक के पास, तो एक एवरी न्यूरॉन इज कनेक्टेड विद एवरी अदर न्यूरॉन। अब इस स्टेज पे कोई ना कोई ट्रांसफॉर्मेशन हो गई, कोई ना कोई मॉडल की लर्निंग हो गई, रिप्रेजेंटेशन हो गई, देन यहां से फिर वही मामला शुरू होता है। ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ, ये इसके साथ कनेक्ट हुआ। ठीक है, और यहां पर फिर दोबारा क्या हो गया अभी, ऑल डब्ल्यूज इंटू एक्स प्लस वाइज एंड अगेन पासिंग विद सम एक्टिवेशन फंक्शन, और यही मामला इस पे चला, इस पे, और आखिर में यहाँ पर सब रिजल्ट आए और दोबारा यही सब हुआ। और कौन सा फंक्शन लग गया इसके ऊपर, सॉफ्ट मैक्स या सिग्मॉइड, उसने क्या दे दी भाई, प्रोबेबिलिटी दे दी। ठीक है, ये एक स्ट्रक्चरल मॉडल बताए, अंदर जो कैलकुलेशन है, अंदर सारा स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटिकल गेम है जो चल रहा होता है। एक जो मॉडल है उसके अंदर उसका आर्किटेक्चर जो है वो कैसा होगा, मैं ये कैसे डिसाइड कर रहा हूं कि दो ही हिडन लेयर होंगी, इनपुट आया आउटपुट आया, बीच का प्रोसेस हिडन लेयर का है, हमें पता ही नहीं चलता उसमें क्या हो रहा है। ये कैसे पता चलेगा दो ही होंगी, नहीं पता। ये कैसे पता चलेगा कि हर एक लेयर में 4 होंगे और एक लेयर में 3 होंगे, नहीं पता। ये सारी चीज होती है हिट एंड ट्रायल बेसिस पे। जब आप काम करते हैं तो आपका आहिस्ता आहिस्ता तजुर्बा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। आप डेटा को देख के अंदाजा लगा लेते हैं कि यार इसको मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। आपने काम किया, फॉर एग्जाम्पल रिजल्ट जो है वो आ गया 60%, फॉर एग्जाम्पल आपने कहा यार 60% आया है, मैंने 2 लेयर लगाई, काम करता हूँ एक और बढ़ा देता हूँ। अब एक जैसे ही बढ़ाया रिजल्ट आ गया 62%, तो फिर आप क्या बोलेंगे, एक और बढ़ा देता हूँ। और फिर एक वक्त आया कि आपने जब बड़ा मजीद बढ़ाना शुरू किया तो रिजल्ट खराब होना शुरू किया, इसका मतलब यार अब लेयर से सेटिंग नहीं हो रही। तो अब आप फिर और सोचेंगे यार न्यूरॉन बढ़ा देता हूँ, और सोचेंगे यार एक्टिवेशन फंक्शन चेंज कर देता हूँ। तो ये सब कुछ सोच सोच के करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप बैठे और ये 5 मिनट में मॉडल बन गया और काम हो गया। कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं जो हम जहन में रखते हैं और उनकी मदद से क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं, उससे हेल्प भी हो रही है। क्योंकि बाकी लोग जो काम कर रहे हैं अपना तजुर्बा शेयर कर रहे हैं, उस तजुर्बे को हम डायरेक्ट ले रहे हैं, बगैर उम्र गुजारे वो तजुर्बा उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है वो उसको इस्तेमाल करते हैं। पहली लेयर और दूसरी लेयर की प्रोसेसिंग में प्रोसेस तो जो है ना ये करते हैं सेम अंदाज में, वही लीनियर इक्वेशन है उसी से गुजरेगा, वही सारी चीजें होंगी। लेकिन इनको यहाँ पर अभी कुछ बहुत सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं जो मैं नहीं यूज कर रहा हूँ, ये रिप्रेजेंटेशंस को लर्न कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, ये जो नोड्स हैं ये छलनी का काम कर रही होती है। वो सारा डेटा, हमारे डेटा में वो सारी इंफॉर्मेशन जो हमें टारगेट से दूर करती है, इस छलनी से पास ही नहीं होती। एक्टिवेशन फंक्शन यही कर रहा होता है, ऐसे सारी वैल्यूज को 0 0 डाल देता है। ठीक है, और जो काम की होती है उन्हें क्या कर देता है, आगे बढ़ाता है। तो हर स्टेज में ये सारा काम जो है वो, ये फेल्स नहीं है, इतना जुल्म नहीं करो बेचारे का। ठीक है, तो हर स्टेज में ये सारे सिलसिले जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे होते हैं और अल्टीमेटली जो है वो यहाँ पहुंच जाते हैं। तो अब मैं क्या एक काम करता हूं, मैं एसके लर्न में रहते हुए हम क्या करते हैं, न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं, बनाएं, या फिर हम
केरस का टेंसर फ्लो का इस्तेमाल कर लें डायरेक्ट। हाँ चलो, थोड़ा हल्का हाथ रखें अभी, मतलब एक ओवरव्यू के तौर पे कर रहे हैं ताकि जो कुछ पढ़ा है जरा हम उसको देख भी लें, जो कुछ पढ़ा है हम उसको देख भी लेंगे यार ये वाकई ऐसा हो रहा है या बस हम बात ही बातें कर रहे हैं। सर मशीन लर्निंग खत्म यहाँ पे हमारे। ये सब मशीन लर्निंग में ही है बाबा। अच्छा, मतलब डीप लर्निंग का इसके अंदर फिर हाँ, हम चलते रहेंगे, पता नहीं चलेगा। परसेप्ट्रॉन डेमो में क्या है अभी, क्या होना चाहिए था, बाल बाल झड़ जाने चाहिए थे कुछ, पता ही नहीं चला। देखो ये एक परसेप्ट्रॉन लिखा हुआ है, डेटा फाइल लोड कर दूं मैं जरा। पहला बोल रहा है बस करो, बस पानी पी ले तो गया, बिल्कुल पानी पी ले तो बिल्कुल गया है? मशीन लर्निंग
देखो ये डेटा है हमारे पास क्लासिफिकेशन के लिए, स्टूडेंट का स्कोर जो है, CGPA ये है, IQ लेवल ये है, प्लेसमेंट होगी, एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये डेटा है, हमने प्लॉट कर लिया है दोनों को XY में, IQ और CGPA, और कहा भी ह्यू कर दो प्लेसमेंट को, यानी ब्लू वाला वो डेटा है जिनका प्लेसमेंट 0 है, और 1 वाला वो डेटा है जिनका प्लेसमेंट 1 है, ऑरेंज वाला। अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया भाई, XY अपना सेपरेट कर लिया, ठीक है। सेपरेट करने के बाद परसेप्ट्रॉन इंप्लीमेंट किया और इसको फिट करा दिया। तो परसेप्ट्रॉन ने जो लर्न करके कोफिशिएंट निकाले हैं वो कितने निकाले हैं भाई, 2 निकाले। क्यों? क्योंकि इनपुट कितने हैं हमारे, W1 W2 ये निकाल दिए उसने, ठीक है। बट क्योंकि सिंगल लेयर परसेप्ट्रॉन है तो सिर्फ 2 ही वेट जनरेट होंगे, हाँ। और बायस की वैल्यू जो है वो ये निकाल दी है। अच्छा, फिर जरा प्लॉट करने के लिए ML एक्सटेंड की एक लाइब्रेरी है जो क्लासेस और उसके रीजन डिसीजन बाउंड्रीज जो है वो प्लॉट कर देती है। ये हमारे पास डेटा है और ये डिसीजन बाउंड्री है। सही लग रही है तो बड़ी खराब लग रही है, हाँ। तो देयर कैन बी मैनी थिंग्स, इनकी रेंजेस को सेट किया जा सकता है और सारी चीजें जो है वो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, देखो यहाँ पर एक छोटा सा काम रन कर रहा हूँ, जस्ट टू टेक यू अ टूर ऑफ मल्टी लेयर परसेप्ट्रॉन्स और न्यूरल नेटवर्क। सब तवज्जो दे जरा। हमने टेंसर फ्लो इस्तेमाल करना है। टेंसर फ्लो डीप लर्निंग की लाइब्रेरी है, मशीन लर्निंग डीप लर्निंग की, और न्यूरल नेटवर्क्स इंप्लीमेंट करने के काम आती है। सिर्फ यही नहीं है, आप पाइटॉर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप क्या, केरास टेंसर फ्लो का ही पैकेज है फॉर राइटिंग न्यूरल नेटवर्क। मैं डिटेल इसकी बताऊंगा। अभी हमने सिर्फ यहाँ से क्या करना है, डेटा सेट जो है उसको लोड किया और डेटा सेट की प्रोसेसिंग की। ये हमने एक आर्किटेक्चर लिखा है। इधर देखो जरा भाई लोगों, ये नेटवर्क एक न्यूरल नेटवर्क मॉडल क्रिएट किया है। समझते जाओ जरा, थोड़ा थोड़ा भी समझ आएगा। और उस मॉडल में हमने एक लेयर लगा दी। क्या लगा दी? उस लेयर में कितने न्यूरॉन्स हैं? कितनी बड़ी लेयर है? 512। और इनपुट उसमें कितनी न्यूरॉन्स का आएगा? 784, यानी x1 x2 x3 x4 कितने x होंगे? 784। और आगे वो कितनों से कनेक्ट होंगे? 512। तो कैन यू चेक कितने वेट्स जनरेट होंगे? अभी बता दो। तो हर एज के ऊपर क्या होगा? एक वेट होता है।
तो 512 से 784 कनेक्ट हो रहे, दोनों मल्टीप्लाई करो, नंबर ऑफ डब्ल्यूज आ जाएंगे, आ जाएंगे भाई। इसको यूं समझ लो कि यहां पर कितने इनपुट हैं? 3 इनपुट हैं, ठीक है। और कितनी नोड्स बनी हुई हैं? 4 नहीं, ज्यादा है यार। 1 2 3 4, कितने हो गए? 4, फिर 1 2, यहां पर आ जाएगा 1, ये तो कनेक्ट हुआ है ना, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, कितने वेट हो गए? तो हम कह सकते हैं कि इनपुट कितने हैं भाई? 3 है, और नोड्स कितनी हैं? 4 हैं, तो टोटल कितने वेट्स हो गए? और 22 भी हर नोड पे जनरेट होगा, तो कितने हो गए? 16। तो इसका मतलब कितने हो गए? 16। अब हमारे पास 784 इनपुट है, कनेक्टेड कितने से हो रहे हैं? 512 न्यूरॉन से। तो 512 न्यूरॉन है, तो 512 क्या होंगे? 22 भी होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो और 512 क्या कर दो? ऐड कर दो। लेयर में नहीं, 22 की वैल्यू सेम नहीं थी कितने का? नहीं है, दो ही चीजें तो है, वेट और 22 चेंज हो रहे हैं। अब 22 को कैसे कांस्टेंट रख दोगे? एक नोड के लिए हर नोड पे कैलकुलेशन हो रही है ना, हर नोड पे सारे वेट आए और 22 की वैल्यू आई, फिर हर नोड पे सारे वेट आए और 22 की, हर दफा चेंज होगी। अब वो अपनी मर्जी से बार बार वही ले आए तो उसकी मर्जी, लेकिन वो कुछ भी ला सकता है। आप इमेजिन करें कितने वेट हो गए, इतने सारे वेट्स को एडजस्ट करना। अभी तो दूसरी लेयर में गए नहीं है, आगे जो है आप समझो जरा। तो 784 न्यूरॉन्स खड़े हैं तैयार फायर होने के लिए, फायर हुए, जाके कनेक्ट हुए कितनों से? 512 से कनेक्ट हो गए, ठीक है। और एक्टिवेशन कौन सा लगा हुआ है? रेलू लगा हुआ है। रेलू क्या करता है? पॉजिटिव वैल्यूज को ऐसे ही जाने देता है, नेगेटिव को क्या कर देता है? अगली लेयर एक और ऐड हो गई। अब हमारे पास कितनी हिडन लेयर हो गई? ये तो आखिरी लेयर है ना, इसके बाद कोई लेयर ही नहीं है, तो ये हिडन लेयर नहीं, ये क्या है? आउटपुट लेयर है। क्या ये? आउटपुट लेयर। तो इसका मतलब एक इनपुट लेयर है, बीच में एक हिडन लेयर है, और एक सिर्फ 3 लेयर का नेटवर्क है। और ये कितना स्ट्रांग है आपको पता है? इस वक्त आप क्या काम कर रहे हैं? आप एक ऐसा मॉडल बना रहे हैं कि आप उसको नंबर लिख के तस्वीर दिखाएंगे तो बता देगा क्या लिखा हुआ है इस पे। 3 लिखा हुआ है, 5 लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है। आप देखें, मैं अभी जो डेटा लिया हुआ है वो हैंड रिटन डिजिट्स का लिया हुआ है। OCR की अम्मी है, मतलब यहीं से जनरेट हुआ है ना वो। हैंड रिटन डिजिट्स डेटा आप देखें तो ये बेसिकली इस तरह का डेटा है, और ये 70,000 तस्वीरें हमने मॉडल को फीड की हैं। कितनी? उसमें 70,000 में 7,000 जीरो होंगे, अगर क्लास बैलेंस है तो 7,000 1 होंगे, 7,000 2 होंगे, और सब हाथ से लिखे हुए हैं ताकि हर तरह का 1 आ जाए। हमारे जैसा जो 1 लिखते हैं वो भी आ जाए, ठीक है। डॉक्टर जो 1 लिखता है वो भी आ जाए, ज्यादा चाहिए। अभी इस पे डिस्कशन में पिक्चर्स को हमने नंबर्स में कन्वर्ट किया है, कन्वर्ट इनटू नंबर्स, क्योंकि मॉडल तो नंबर ही समझता है। अच्छा, आएंगे इसके ऊपर, वो सारी बातें हमारी डिस्कशन में हैं। अब हमने क्या किया? नेटवर्क को बोला भाई आपका ऑप्टिमाइजर जो है, आपका जो इंजन है वो RMS प्रॉप है, और आप जो लॉस एरर कैलकुलेट करेंगे वो ये वाला करेंगे, और हमें आप क्या बताएंगे? हम प्रिसिशन भी ले सकते हैं यहाँ पर और रिकॉल भी
ले सकते हैं। हाँ, थोड़ा हार्ड हो रहा है ये ना। अभी मैं आपको कह नहीं रहा हूँ समझने के लिए, मैं तो आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि नेटवर्क रन कैसे होगा। ठीक है, मैंने नेटवर्क आर्किटेक्चर को चेक किया, कंपाइल किया, और ये मैंने वन नॉट इनकोड किया डाटा को, लेबल्स को लेबल इनकोडिंग वन नॉट इनकोड कर दी। आप नहीं भी करते इसको, लेबल इनकोडर कर देते, वो ऑलरेडी लेबल इनकोड में तो पहले ही है 1 2 3 4 आ रहा है, तो ये इट्स नॉट अ मैंडेटरी स्टेप, आप छोड़ देते। अब मैंने मॉडल की यहाँ पर क्या कर दी भाई, ट्रेनिंग। देखो वहां जो मशीन लर्निंग में थी, शैलो लर्निंग थी, वहां ट्रेनिंग नजर नहीं आती थी, बस एक बार गया डाटा, काम खत्म। नाउ यू विल सी हियर कि भाई क्या चल रहा है। अच्छा जी, ये फिट नहीं हो रहा, यू कॉल कंपाइल बिफोर यूजिंग द मॉडल। अच्छा, मॉडल मैंने क्रिएट नहीं किया शायद, मैं दोबारा रन कर देता हूँ यहाँ से। ये वाला सेल नहीं चला, नेटवर्क 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 और नेटवर्क डॉट फिट। अच्छा जी, ये वाला काम हटा दो। ये लेबल्स हैं, ये ऑलरेडी लेबल इनकोडर हुए हैं, मैंने वो वाला स्टेप हटा दिया है जहाँ वन नॉट इनकोड किया था। आर्गुमेंट टारगेट एंड आर्गुमेंट मस्ट हैव द सेम रैंक एंड डायमेंशन रिटर्न्स। क्यों भाई, ट्रेन इमेजेस, ट्रेन लेबल्स। अच्छा, क्या मसला है? देखो भाई, जरा ट्रेनिंग को देखो, अभी पहले ये चल जाए सक्सेसफुली। भी डाटा ही कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। ये देखें, अभी छोड़ दे मकसद को बेटा, मकसद सिर्फ जन्नत में जाना है। ठीक है, ये बार बार डाटा फीडिंग हो रही है और नेटवर्क जो है वो सेल्फ लर्निंग कर रहा है। बैच उठा सकते हैं। और आप देखें एक्यूरेसी लेवल जो है वो ट्रेनिंग में कहाँ तक पहुंच गया है, अभी ये और आगे बढ़ता जा रहा है।
तो एक्यूरेसी लेवल भाई कितना आ गया इस पे ट्रेनिंग में, और इस 91 एक्यूरेसी लेवल के लिए आपने मॉडल कितना खतरनाक लिखा है, एक लेयर का मॉडल लिखा है खाली। कितने लेयर का, एक लेयर का मॉडल लिखा है, और उस एक लेयर के मॉडल के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, 91% एक्यूरेसी पर जो है वो पहुंच रहे हैं। नहीं नहीं, 784 जो है ना वो समथिंग एल्स, वो मैं बताता हूँ। अच्छा, अच्छा अब ये जब ट्रेन हो जाएगा तो हम इसकी टेस्टिंग भी कर लेंगे। पहले वो जरा दोबारा से मैंने चलाया है, फिर भी आप हम इसको एक डिजिट दे के जो है ना क्या करेंगे, टेस्ट भी करेंगे। हाँ, अभी इसको डिस्कस करेंगे ना, ये हम कैसे सिलेक्ट करते हैं, क्या कितने होने चाहिए, ये अलग डिबेट है। अभी हम ये देख लें कि यार मल्टी लेयर में कैसे सेल्फ लर्निंग जो है मॉडल जो है वो कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है। 99%। ठीक है, 99.35% एक्यूरेट। और टेस्ट में देख लेते हैं क्या एक्यूरेसी है। तो हमारे पास पहले इवेल्युएट करवाता हूँ ताकि टेस्ट एक्यूरेसी निकल आए। किसमें कम हो गया ना, अब कम होता गया ना दोबारा। हाँ बिल्कुल जो है वो कम की तरफ चला गया। देखिए अभी टेस्टिंग में कितना आ गया स्कोर इसका, 96%। ठीक है, और अब देखो इधर, इधर जरा तवज्जो दें। अब मॉडल क्या हो गया भाई, ट्रेन टेस्ट हो गया है, और अब हम क्या करने लगे हैं, अब एक इमेज को हम लेंगे। ठीक है, उस इमेज को हम क्या करेंगे भाई, पहले उसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट करेंगे। ये सब हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। फिर उसका इमेज, वही इमेज को रीसाइज करेंगे, जिस साइज का हमने ट्रेनिंग में डाटा लिया हुआ था। वो इमेज फिर कन्वर्ट होगी किसके अंदर, एरे के अंदर कन्वर्ट होगी। एरे के अंदर कन्वर्ट होके हम उस मॉडल को बोलेंगे भाई इसमें प्रिडिक्ट करो, और मॉडल जो प्रिडिक्शन देगा हम क्या करेंगे, उसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट करेंगे कि भाई वो प्रिडिक्शन क्या है। नाउ वी सी कि भाई अब वो क्या आता है। मैं यहाँ पर एक इमेज अपलोड कर लेता हूँ।
लाइक ये मेरे पास एक इमेज है 5, क्या है ये 5.png, इसको मैंने यहाँ अपलोड किया। अब मैं इसको देता हूँ यहाँ पर कॉल करते वक्त, देखो क्या कहता है ये 5 कहता है, 10 कहता है, 6 कहता है, कितना अच्छा रिजल्ट आता है। सी क्या कह रहा है भाई, इसको 1 कह रहा है, ठीक है। गलत प्रेडिक्शन दी है। वन भी लोड करता हूं मैं, देखो 1 को क्या कहता है, 1 को तो 1 ही कह रहा है, ठीक है। और भी कोई इमेज लेते हैं। अच्छा 3 जो है वो वाइट बैकग्राउंड पे ब्लैक इमेज है, हमारा जो डेटा है वो, चलो दे के देख लेता हूँ वैसे क्या होता है। हाँ 3 तो वर्किंग कर रहा है, बिल्कुल सही डिजिट को पहचान रहा है। और 4 4 भी लोड किया मैंने, 4 को 8 कह रहा है अभी, ठीक है। नहीं वो क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है, लाइट और डार्क का थोड़ा सा मसला है। वैसे मैं अगर इमेज खुद बनाना चाहूँ तो कैसे बनाऊंगा, हैं? नहीं नहीं नहीं, ये 28 by 28 का इमेज साइज है, क्या लिखूं इसके अंदर, सिंगल 0 to 9 की डिजिट है। अबे ये इतनी सी इमेज है यार, उस पे लिखता कैसे मैं, इसको सेव कर रहा हूं मैं, क्या नाम रखूं, 9.png। अब इसको अपलोड कर रहा हूं यहाँ पर, तीन बता दिए भाई उसने। हाँ बिल्कुल दो असल में जो प्रॉब्लम है वो बता देता हूँ कि हमारा जो डेटा है वो ब्लैक बैकग्राउंड पे वाइट से है, ठीक है। अगर हम वो करेंगे इंशाल्लाह जवाब जो है वो सही हो जाएगा। अगर मैं इसको ब्लैक कर दूं और इस पे अब लिखूं वाइट से, 9 ही लिखूं, क्या लिखूं, नहीं देखते हैं। पर बच्चे की आंखें होती है ना, मॉडल की आंख नहीं है बेटा, ये तो समझो। मॉडल को आप आंख दे रहे हो, कंप्यूटर को आंख दे रहे हो, आर्टिफिशियल आंख। लाइन है ना, नहीं तो यहाँ
हाँ बोर्ड लगाना मैंने। देखो भाई 9 को क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है, 2 कह रहा है भाई।